Chapter number 11, Light, Shadow and Reflections. Let's start. We see so many objects around us. On the way school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see objects? हम अपने चारों ओर देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं। स्कूल से आते जाते वक्त भी हम देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ों को। तो आपने क्या सोचा कि हम किस तरह इस सब चीज़ों को देख सकते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम। इफ इट वेर completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? अब अंधेरे प्लेस के बारे में सोचिए। क्या आप सभी चीज़ों को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे कि दिन में देख सकते हैं? एक बंद कमरा हो जिसमें पूरी तरह से अंधेरा हो, तो क्या आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं? बट व्हेन यू लाइट a candles or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? Without light, things cannot be seen. Light help us see objects. But अगर हम लाइट कैंडल्स और टॉर्च लेके उस अंधेरे प्लेस पे जाएंगे तो हम इजीली सभी चीज़ों को देख सकते हैं। क्या ऐसा ही है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट हमको हेल्प करती है सभी चीज़ों को देखने में। ओके? The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. टॉर्च, बल्ब ऐसी चीजें हैं जो खुद प्रकाश देती है। सूर्य आकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देख भी सकते हैं, और जो चीजें सन की तरह खुद प्रकाश देती है उन्हें हम ल्यूमिनोस कहते हैं, मीन्स कि प्रकाश देने वाला। What about objects like a chair, a painting or a shoes? We see this when light from a luminous objects like the sun, a torch or an electrical light falls on these and then travels toward our eyes. Chair, painting और shoes, इस चीज़ों पर जब प्रकाश पड़ता है तभी हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, और उसके बाद ही हमारे आँख पर उसके प्रकाश पड़ता है और हम इजीली उस चीज़ों को देख सकते हैं। 11.1 Transparent, opaque and translucent objects. Recall our grouping objects as a opaque, transparent or translucent. In chapter 4, if we cannot see through an object at all, it is an opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. There are some objects through which we can see but not very clearly. Some objects are known as translucent. Translucent. Transparent means पारदर्शी, opaque means अपारदर्शी and translucent means पारभासी। ओके, हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ को हम आर पार देख सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। और किसी चीज़ है, कोई चीज़ है जिसको हम आर पार नहीं देख सकते तो उसे कहते हैं अपारदर्शी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्लियरली आर पार नहीं देख सकते तो उसे क्या बोलेंगे हम? पारभासी। ओके, इट्स इजी। Activity number 1. Look around yourself and collect as many objects as you can. Eraser, plastic, scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or a piece of cloth. Try to look at something far away. Through each of these objects, figure 11.1. Is light from a faraway object able to travel to your eyes through any of the objects?
आप अपने चारों ओर इस तरह की कई सारी चीज़ों को कलेक्ट कीजिए और देखने की ट्राई कीजिए। क्या दूर रखी चीज़ों से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? Record your observation in a table as shown in table 11.1. We see that a given object or material could be transparent, translucent, or opaque depending on whether it's allow light to pass through it completely, partially, or not at all. ये सब चीज़ों को अब कैसे पता चलेगा आपको कि ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या तो फिर ट्रांसलूसेंट है? तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जब जो लाइट है वो उसमें से कैसे पास होती है, मीन्स कंप्लीटली होती है, पार्टियली होती है और नहीं होती लाइट उसमें से पास, तो फिर आप उसे इजीली इन 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, टेबल नंबर 11.1। अब हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मटेरियल दिए गए हुए हैं। ओके, तो हमें अब पता करना है कि वो किस तरह के हैं, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसल्यूसेंट है। लेट्स ट्राई। पेंसिल, तो पेंसिल किस तरह से हमें लाइट दिखेगी? कैन नॉट बी सीन अक्रॉस, मीन्स किस चीज़ में आएगा? तो ओपेक में। ओके, देन रबर बॉल कैन नॉट बी सीन अक्रॉस, फिर से ओपेक। Then sheet of writing paper. So, not very sure. Fully, partly or not at all. तो not very sure आएगा, means किस पार्ट में हमें उसे रखना होगा? to translucent. Okay, it's easy. 11.2. What exactly are shadows? Activity number 2. Now, one by one, hold each of the opaque objects in the sunlight, slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadows. Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow. Figure 11.2. अब आप सभी इस अपारदर्शी वस्तुओं को एक एक करके थोड़ी ऊंचाई पे जाके पकड़िए और आपको क्या देखने को मिलेगा? धरती पे उनका शैडो दिखेगा और वो जो धरती पर उन काला धब्बा जैसा दिखता है वो उनका शैडो है। अब हम कई बार उनके शैडो देख के भी पता कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, जैसे कि फिगर 11.2 में दिखाया गया है। Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the objects. Draw outlines of the shadow of other objects in a similar way. अब आप मैदान में जाकर एक शीट बिछाइए और आप कुछ जानकार चीज़ को कि जो अपारदर्शी है उसे थोड़ी ऊंचाई पे पकड़े हुए रखिए। ओके, और इस तरह से पकड़िए कि वो आपने जो मैदान पे कागज़ की शीट बिछाई है तो उस चीज़ को जिसको आपने पकड़ा है उसका शैडो सीधे ही उस शीट पे पड़े और आपके फ्रेंड्स को बोलिए कि वो उस चीज़ का उस शैडो जो गिरता है आपके शीट पे उसका आउटलाइन ड्रॉ करें। ओके, नाउ आस्क सम other friends to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are they able to identify correctly? अब आप आपके दूसरे फ्रेंड्स को कहिए कि जो एक फ्रेंड ने जो आउटलाइन ड्रॉ की है उसको पहचानिए। अब कितनी चीज़ें ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड्स पहचान सकते हैं? डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? डू यू ऑब्जर्व अ शैडो when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required?
क्या हम अपना शैडो अंधेरे प्लेस में मीन्स कि रात के समय में या तो फिर बंद कमरे में जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे देख सकते हैं क्या? और हम देख सकते हैं या नहीं? हमें ऐसा लगता है कि शैडो को देखने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो लाइट देती हो और अपारदर्शी चीज़ भी चाहिए होती है, तभी हम अपना शैडो देख सकते हैं। ओके। एक्टिविटी नंबर 3. This is an activity that you will have to do in the dark. In the evening, go out in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, buildings, or any other objects behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This doesn't mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. अब आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक टॉर्च और एक बड़ी सी शीट लेके खुले मैदान में जाना होगा। अब शाम में आप टॉर्च को इस तरह जलाइए कि जैसे उस टॉर्च का प्रकाश आपके फ्रेंड्स के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास टॉर्च है और अपारदर्शी चीज़ क्या है? आपका फ्रेंड, और टॉर्च का प्रकाश भी है। अब आपके फ्रेंड्स के पीछे कोई ट्री या बिल्डिंग्स नहीं हो, फिर भी आपको क्या अपने फ्रेंड्स का चेहरे की परछाई दिख रही है पीछे? क्या आपको फ्रेंड्स का शैडो दिख रहा है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वहाँ शैडो नहीं है। एक्चुअल में टॉर्च की जो लाइट है वो आपके फ्रेंड्स के पीछे पार नहीं हो रही है। Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now see on the cardboard sheet? Figure 11.3. अब आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को कहिए कि फ्रेंड जो खड़ा है उसके पीछे एक शीट बड़ी सी आप जो लाए थे उसको लेकर खड़ा हो जाइए। ओके। आप अब देख सकते हैं क्या वो शीट पे आपके फ्रेंड की जो शैडो है वो बन रहा है या नहीं। Thus, the shadow can be seen only on screen, the ground walls of a room, a building, or other such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life. अब आपको पता चल गया होगा कि शैडो सिर्फ पर्दे पर ही दिखाई देता है। मीन्स कि ऐसी कई सारी चीज़ें जैसे कि ग्राउंड, वॉल्स एंड रूम्स, बिल्डिंग्स, वो सब पर्दे की तरह हमको शैडो दिखने में इजीली देख सकते हैं, इसीलिए वो पर्दे की तरह काम करती है। ओके। शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड us about the shape of the objects. Figure 11.4 are a few shadows that we can create with our heads and make believe that they are shadow of different animals. Have fun. शैडो से हमें कई चीज़ों के बारे में मीन्स के चीज़ों के शेप के बारे में हमें पता चला। कभी कभी तो जो शैडो है वो हमें कई चीज़ों के बारे में भ्रमित भी करता है। जैसे कि हम इस फिगर 11.4 में देख सकते हैं कि हम अपने हाथों से कैसे कई एनिमल्स के शैडो बना सकते हैं, और ये सब शेप है जो हमें एनिमल है ऐसे लगते हैं और हमें भ्रमित भी कर सकते हैं। ओके। इसमें हमें मज़ा भी आता है। एक्टिविटी नंबर 4. Place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of the chair? Thus, the shadow gives an accurate picture of the shape of the chair. If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? इस एक्टिविटी में आपको स्कूल के ग्राउंड में एक चेयर पे बैठना है
और आप उसका शेडो देखिए कि क्या एग्जैक्ट जो आप चेयर है उसी तरह आपका शेडो मिल रहा है। अब आप थोड़ी सी कुर्सी को मतलब कि चेयर को घुमा दीजिए, तो क्या वही टाइप का आपको शेप दिख रहा है शेडो में? टेक अ thin notebook and a look at its shadow. Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seem to have a similar shape? एक पतली नोटबुक को लेकर आप उसका शैडो देखिए और बाद में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको भी आप उसका शैडो देखिए। क्या आपको लगता है कि दोनों चीज़ें का शेप का जो शैडो है वो सिमिलर है? Take a flowers or other objects of the different colors and look at their shadows. A red rose and a yellow rose. For instance, do the shadow look different in color when the colors of the objects are different? अलग अलग कलर की चीज़ें या तो फ्लावर्स को आप शेडो देखिए, क्या आपको दोनों फ्लावर्स है जो अलग अलग कलर्स के हैं या तो फिर जो चीज़ आपने ली है दोनों सेम है, मतलब कलर्स ही सिर्फ डिफरेंट है, क्या आपको शेडो भी उनकी डिफरेंस दिखती है या सेम ही दिखती है? टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो on the ground. When you move the box around, you may see that the size of the shadow changes. When is the shadow of the box the shortest? When the long side of the box is pointed towards the sun, or when the short side is pointing towards the sun. Let us use these long box to prepare a simple camera. अब आप एक लंबा बॉक्स लीजिए और उसके शेडो को ध्यान से देखिए। जब आप उस बॉक्स को इधर उधर हिलाते हैं तो क्या उसका शेडो में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है? बॉक्स की जो शेडो है वो कब सबसे छोटी बनती है? जब आप उसको सन के एग्जैक्ट सामने रखेंगे उसकी बड़ी साइड, या तो फिर उसकी छोटी साइज को सन के सामने रखेंगे, कब वो एकदम छोटी दिखाई देगी उसकी शेडो आपको? आइए अब हम उस लंबे बॉक्स का यूज़ हम एक सिंपल कैमरा बनाने में करते हैं। ओके, थैंक यू।